था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Welcome, dear friends, to the presence of the living God. मेरे प्रिय दोस्तों, जीवित प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है. The Lord loves the families, प्रभु परिवारों से प्रेम करते हैं and He loves to walk among the families of His people. और अपने परिवार के बीच चलने में उनको बहुत आनंद आता है. Jeremiah 31:1 says, God is the God of the families. यिर्मयाह 31:1 में पढ़ते हैं कि प्रभु परिवारों का प्रभु है. So He loves the families who sanctify themselves. इसलिए प्रभु ऐसे परिवार से प्रेम करते जो अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं. Evangeline, do you want to share something about it? क्या इवेंजेलिन आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? I have seen so many sisters saying this. मैंने कई बहनों को देखा हुआ है ये कहते हुए. Sister, looking at your family, I also have the desire to serve the Lord as a family. बहन, आपको देखकर मुझे भी परिवार के रूप में प्रभु की सेवकाई करने की लालसा मन में उठती है. It's not so easy, ये इतना आसान कार्य नहीं है. especially for ladies to come and serve the Lord. It's very difficult. विशेष रूप से महिलाओं को प्रभु की सेवकाई करना बहुत ही मुश्किल है. We have so many work in the house as well as in the ministry. क्योंकि घर और सेवकाई में हमें बहुत ज्यादा कार्य है. For that we need the help of our family members. और इसके लिए हमें हमारे परिवार के जनों की सहायता की आवश्यकता है. They should understand us और उन्हें सबसे पहले हमें समझना चाहिए and help us. और हमें सहायता करनी चाहिए. This happens only through the Holy Spirit. और ये सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है. Only through the Holy Spirit the love will be poured upon them to love each other. और पवित्र आत्मा के द्वारा परिवार में प्रेम होगा और प्रेम एक दूसरे के ऊपर उड़ेला The जाएगा. Lord has graciously used us and still He is using us as a family to serve the Lord. प्रभु अनुग्रहकारी रूप से होकर हमें परिवार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं. I was very particular when our children were very small. और जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब मुझे बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता थी. For the Lord to come and fill them when they were so young. और मुझे लालसा थी कि बच्चे जब छोटे थे पवित्र आत्मा उनको भर दे. So I used to teach them how to be filled by the Holy Spirit. इसलिए मैं उनको ये सिखाती थी कि कैसे वो पवित्र आत्मा से भर सकते And हैं. they also, on the other hand, when we were praying as a family, would cry to the Lord, Lord, fill us with the Holy Spirit. और दूसरी तरफ जब हम परिवार के रूप में प्रार्थना करते थे मेरे बच्चे भी प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे. As the Lord saw their longing, the Lord poured both Sam and Sharon with the Holy Spirit. और प्रभु ने जब ये लालसा को देखा तो प्रिय सैम और शैरन दोनों को पवित्र आत्मा से भर दिया. Only after they received the anointing, और उनके अभिषेक प्राप्त करने के बाद they had the strength to stand for the Lord. उनके पास बल प्राप्त हुआ कि वो प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हो सके. The Lord gave us family members the strength to stand for the और Lord. प्रभु ने हमारे परिवार को भी बल दिया कि हम प्रभु के लिए खड़े हो Dear सके. friends, we pray together and we have come here only to pray for you, for the Lord to come upon your family also. मेरे प्रिय दोस्तों, हम परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं और इस वक्त हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं. So let us ask the Lord for the Lord to come and fill us with His own Spirit, इसलिए आइए अभी हम इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे, to unite us with His Spirit. जिससे कि हम उनकी आत्मा के द्वारा एक हो जाए. Only then we can be used by the Lord as a mighty vessel of God. और उसके बाद ही हम प्रभु के द्वारा सामर्थ में इस्तेमाल किए जाएंगे. So let us dedicate our family
to serve the Lord today, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, आइए अभी हम हमारे परिवार को प्रभु को समर्पित करें कि वो हमें इस्तेमाल करे। Let us cry for God's help today. और आज के दिन आइए हम रोए, प्रभु हमारी सहायता करे। Let us say, Lord, you are our help. You are my rock. You are my deliverer. और कहे, हे प्रभु आप हमारी चट्टान है, आप हमारी सहायता है और आप ही हमारे सब कुछ हैं। And let us cry to the Lord today और आज के दिन आइए प्रभु के समक्ष हम रोए, for God to use us as a family. जिससे कि परिवार के रूप में प्रभु हमें इस्तेमाल करे। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious drug, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious drug, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Dear friends, today we are going to meditate upon the power of prayer. आज सुबह के समय प्रार्थना के सामर्थ्य के विषय में हम अध्ययन करेंगे। Our Lord grants all the desires of the hearts of the righteous. धर्मियों की हर एक दिल की मुराद को हमारा परमेश्वर पूरा करता है। The desire of the righteous are granted. और जो धर्मियों की मन की इच्छा रहती है प्रभु उसको पूरा करता है। Our Lord delights when we remain faithful to Him. और परमेश्वर खुश होता है जब हम उसके साथ ईमानदार रहते हैं। The Bible says in Proverbs 12:22, और नीति वचन 12 उसका 22 में ये लिखा हुआ है, He delights in men who deal truthfully. जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। As David said, जैसे दाऊद ने कहा, you will also say, the Lord will deliver me because He delights in me. और आप जैसे दाऊद ने कहा, प्रभु इसलिए तुम मुझसे खुश है, तू मेरी दुआओं को सुनता है। आप भी कहेंगे प्रभु आप खुश है, मेरी दुआओं को सुनेंगे। Our God is full of love. हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। He is ready to show you compassion. वो तैयार है कि अपने तरस आपके ऊपर में प्रकट करेंगे। Even before we wait upon the Lord, इससे पहले कि हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें,
He rises up to show us compassion. और जब हम इंतजार करते हैं वो खड़ा होता है कि अपनी तरस को हम पर प्रकट करें। This we can see in Isaiah 30:18. और हम इसको देख सकते हैं ऐसाया 30 उसका 18 में। He longs to be gracious to us. वो हमारे प्रति अनुग्रहकारी होने के लिए रहता है। We have come to see such a God. हम ऐसे परमेश्वर को देखने के लिए आए हैं। It is for God to heal us today. और ये परमेश्वर है जो हमें शिफा देगा। It is for God's duty to touch us. और ये परमेश्वर का काम है कि हमारी जिंदगी को स्पर्श करे। He delights in his children. वो अपने बच्चों में प्रसन्न होता है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Even yesterday we might have seen so many people being healed. कल हम लोगों ने देखा होगा कई लोगों को प्रभु ने चंगाई दी। The Lord delivered the people from their oppression. और लोगों को प्रभु ने उनके दुष्टात्मा की शक्तियों के प्रभाव से आजाद किया। From the oppression of the evil spirit. दुष्ट आत्मा के प्रभाव से प्रभु ने उनको आजाद किया। What's your name, sister? क्या नाम बहन? मीनू पाल। मीनू पॉल। क्या हुआ आपके साथ? मेरे को 10 साल से सर में दर्द रहता था। इस साल भी मैं एडमिट रही, उससे साल भी एडमिट रही। पूरा ट्रीटमेंट हुआ, सर में 2 दाग निकला मेरे। डॉक्टर बोलता है धीरे धीरे जाएगा, दवाई का कोर्स करना है। मैंने कुछ दिन दवाई खाया, फिर छोड़ दिया, फिर वही तकलीफ होने लगा। प्रार्थना हुआ, बीच बीच में रुक जाता था, फिर होने लगता था। प्रार्थना से मेरा मन हट जाता था। तो मेरे हस्बैंड बहुत रो रहे थे और कह रहे थे अब मतलब इतना नहीं है मेरे पास पैसा जो मैं अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करा पाऊँ। तो हमारे चर्च के एक भाई हैं, तो उन्होंने आपको मिलने के लिए बोला था। और अभी जब मैं आ रही थी तो मेरा अजीब सा बिहेव हो गया स्टेशन पे। मैंने अपने हस्बैंड को सब काट लिया शरीर में, और मैं मतलब मुझे उस समय नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं मतलब अच्छी खासी उतरी गाड़ी से और मैं भागने लगी बहुत तेज़ी से। मेरा हस्बैंड सामान पकड़ता है, बच्चों को पकड़ता है, लेकिन मैं भागती चली गई। और बहुत लोगों ने मेरे को मतलब पीछा किया, सारा भीड़ लग गया। फिर पकड़ते हैं, बोलते क्या हो गया तेरे को। और मैं रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर इधर आती हूँ, इधर बैठी मैं, और मुझे चक्कर आने लगा। थोड़ी देर मैं बैठी रही, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा था। जब सिस्टर आकर इधर बोलती हैं Even now miracles are happening. और अभी भी इस समय भी खुदावन काम कर रहा है। The Lord who can give us everything खुदावन जो सब कुछ दे सकता है can transform your family members also. आपके परिवार के सदस्यों की जिंदगी को भी बदल सकता है। तो मेरा मन कह रहा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। थोड़ी देर में मेरे शरीर में एक झंझोनाहट हुई। You evil spirit, leave their bodies right now. हर एक बदरू यीशु के नाम से जाती रहे, Leave them जाती रहे in Jesus' यीशु name. के नाम में। Leave them right now. जाए यीशु के नाम में। Run out of them. भागे इनके अंदर से। Come out. बुलाइए, Come out in Jesus' यीशु के name. नाम में निकल आए। और जोर जोर से मैं रोने लगी, चीखने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था कोई मुझे सुन रहा है और मेरी तकलीफ जा रही है। मैं वीक, अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रही थी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा सर का दर्द कभी नहीं जाएगा। Doctors may have given up hope, हो सकता है डॉक्टर ने आशा खो दिया होगा, but the hope of glory is delivering you right लेकिन now. आशा हमारे लिए महिमा का जो आशा है वो आपको आजाद कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। मेरे को थरथरी हुआ, ऐसा हुआ मुझे किसी ने छुआ और मेरा दर्द बिल्कुल दूर हो गया है और कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास आ रहा था, मन में लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, और बहुत मेरे को आराम मिला। बहुत में Who healed you? किसने ठीक किया आपको? प्रभु यीशु ने। Yeshu. यीशु। Praise the प्रभु की Lord. स्तुति हो। 10 years she was afflicted by the evil powers. 10 साल से दुष्टात्मा से पीड़ित थी। Headache. सर का दर्द। But even while coming to the meeting, the evil powers oppressed her. और मीटिंग में आते समय भी बदरू ने उसको परेशान किया। But tonight, when Sister Evangeline began to bring the word of God, लेकिन जब बहन इवेंजेलिन ने प्रभु के वचन को लाया,
the Holy Spirit has come upon her. पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया And God has delivered her from the evil और powers. प्रभु ने उनको बुरी शक्ति से आजाद किया। 10 years of evil powers have gone. 10 साल से बुरी शक्ति चली गई। And the headache has gone. अब सर दर्द चला गया। Isn't Jesus alive? क्या यीशु जीवित नहीं Shall है? we shout a big hallelujah to Jesus? जोर से हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are a loving तू God. प्रेमी प्रभु है। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। It is the Lord who did it. ये प्रभु है जिसने इस काम को किया। It is the Lord who did it. ये प्रभु है जो इस काम को किया है। Evangeline is nothing, इवेंजलिन कुछ भी नहीं है, but the Lord who is in me is greater than who is in the world. लेकिन प्रभु जो मेरे अंदर में है, जो संसार में है, उससे कहीं बढ़ के है। He can do everything. वो सब कुछ कर सकता है If you believe. यदि आप विश्वास If करें। you believe, you will see the glory of यदि God. आप विश्वास करेंगे, आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। Mary and Martha came to Jesus and cried like this. और मरियम और मार्था यीशु के पास में आके ऐसे रोने लगी। Lord, if you had been here, my brother would not have died. वो कहने लगी दोनों बहनें, प्रभु यदि तुम होता तो मेरा भाई नहीं मरता। And after 4 days after the death of Lazarus, लाजरस के मौत के 4 दिन के बाद the Lord lifted him up, प्रभु ने उसको उठा के खड़ा किया, lifted him up from darkness, उसको अंधियारे से उठा के खड़ा किया and he came alive. और वापस वो जीवित हो गया। And he came alive और वो वापस जीवित हो गया after 4 days. 4 दिन के बाद में। Will he not do that for you? क्या वो आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? Jesus was a friend of Mary and Martha. यीशु मसीह मरियम मार्था के मित्र थे, A friend loves at all times. और मित्र जो हर वक्त हर समय प्यार करता है। Dear friends, प्रिय मित्रों, our Lord is a loving God, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, a loving mother. एक प्रेमी माँ के समान है। Yesterday, the December 1st, I lost my mother. और 1 दिसंबर मैंने अपनी माता को खो दिया था। That was the day in 1989 I lost my mother. 1989 में मैंने अपनी माता को खोया। My heart was so heavy when I got up in the morning. और जब मैं सुबह के समय उठी तो मेरा दिल बिल्कुल बोझिल था। But in the evening, लेकिन शाम के समय the Lord spoke to me clearly प्रभु ने बड़े स्पष्टता से मुझसे बातचीत की। before coming to the meeting. इससे पहले कि मैं मीटिंग में आई, He said, "You are my daughter. और उसने कहा तू मेरी बेटी है। You may not have your mother with you, हो सकता है कि तेरी माँ तेरे पास में नहीं है, but I am a mother since then. लेकिन उसके बाद से मैं तेरे माँ भी हूँ। I am your mother since then. उस समय से मैं तेरा माँ भी रहा हूँ। I am your father. मैं तेरा पिता भी हूँ। I am your everything. मैं तेरा सब कुछ हूँ। So today I am going to honor you. सो आज मैं तुमको इज्जत दूंगी। Whatever you say, I will do it." जो कुछ तू कहेगी मैं तेरे लिए आज करूंगा। What a God we have. क्या dear परमेश्वर friends. हमारे पास में है। For God to listen to our prayers, और कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। He humbled himself as a servant. और वो एक इतना नम्र बना, दास का रूप ग्रहण कर लिया। He humbled himself to the death. उसने मौत तक अपने आप को नम्र किया। He closely listens to the prayer of those who remain truthful. जो सच्चाई के साथ बने रहते हैं, उनकी दुआओं को सुनने के लिए वो ईमानदार रहता है। All that we have to do is, हम सबको बस एक ही काम को करना है। Lord, I have to remain truthful till my death. परमेश्वर अपने मौत तक मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। We need not ask anything from God. आपको परमेश्वर से कुछ बात पूछने की जरूरत नहीं। He knows what to give to us. उसको मालूम है कि आपको क्या चाहिए। He plans everything before we ask. इससे पहले कि हम योजना बनाते हैं, वो सारी बातों को देता है। To give us future. हमें भविष्य भी देता है, To give us hope. हमें आशा देता है। Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, let us remain faithful till our death. अपने मौत तक ईमानदार रहे खुदावन के साथ में। He delights in a man who deals truthfully. और वो काम जो इंसान सच्चाई से करता है, उनसे वो खुश होता है। Let us not try to hurt anybody. आइए हम किसी को चोट पहुंचाने का काम ना करें।
It is not our business to do that. ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी को बुरा भला कहें या चोट पहुंचाएं। It is God's business. ये परमेश्वर का काम है। He says, it is mine to avenge. वो कहता है ये बदला लेना मेरा काम है, I will repay. मैं सब चीज को बदला चुकाऊंगा। Dear friends, प्रिय मित्रों, let us live a life pleasing to God. आइए ऐसी जिंदगी जिए कि हम प्रभु को खुश करने वाले हों, Then the Lord will answer every one of our और prayers. तब प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Whatever you say, it will be done. जो कुछ भी आप कहेंगे वो होगा। Jesus says, even if you say, you mountain, be removed and go somewhere, it will be done. और प्रभु कहता है यदि आप पहाड़ से कहोगे उखड़ जा कहीं और जा, पर वो आपके लिए हो जाएगा। The only thing we need is सिर्फ हमें एक चीज की जरूरत है to have the Spirit of God in us. कि हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा हो। Martha asked God, मार्था ने यीशु से यूं बात को पूछा था, Lord, my sister Mary has left me alone to do all the chores in my family. और प्रभु मेरी बहन मेरी ने सब बातों को अकेले मेरे ऊपर में किया कि मैं सब काम को करूं। Are you not worried about that? क्या आप इसके बारे में सोचते नहीं, चिंता नहीं करते? And the Lord said, और प्रभु ने उत्तर दिया, the one thing is needed. एक बात की जरूरत है, Mary has chosen a good part और मरियम ने बेहतर हिस्से को चुन लिया है to come and stay at my feet. ताकि मेरे कदमों में आके बैठ सके। That is the only thing we need, dear friends. प्रिय मित्रों, एक ही बात की हमें जरूरत है। These days, इन दिनों में we have to travel all over the world. हम सारी दुनिया में यात्रा करते हैं। So I have to do everything in my family. मैं in my अपने house. परिवार में सब कुछ मुझे करना पड़ता है। I have to cook. मुझे पकाना पड़ता, I have to leave my daughter to school in a car. और कार में मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती I हूँ। have to drive. मुझे ड्राइव करना पड़ता है। I have to go to the market and buy things. मुझे मार्केट में जाके चीजों को खरीदना पड़ता है। I have to do all the works in my house. मेरे घर में मुझे सब काम करने पड़ते हैं। But even then, लेकिन तब भी the Lord has given me grace to minister. प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है कि सेवा को मैं कर सकूं। The Lord has given me strength to do everything. परमेश्वर ने मुझे बल दिया कि मैं सब कुछ को कर सकूं। And I would all the time say, और मैं हर समय ये बात को कहती हूँ, I can do all things through Christ who strengthens me. मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे बल देता है। My husband and my children would ask me, मेरे पति और मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, how are you able to do all these things? ये तमाम चीजों को आप कैसे कर सकती हैं? And they will try to help me. और कोशिश करते मेरी सहायता करने का, But they could not help me. वो मेरी सहायता नहीं भी कर सकते, They will not be able to help me. वो मेरी सहायता नहीं कर सकते, They will also have so many works to क्योंकि do. उनके पास खुद के इतने जिम्मेदारियां और काम होते हैं। Dear friends, प्रिय मित्रों, let us depend on God आइए हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें and say, Lord, help me. और आप कहे, प्रभु आप मेरी सहायता I कीजिए। lift up my eyes to the Lord, the maker of heaven and earth. मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाऊंगा जो पृथ्वी का करता है। My help comes from only Him. मेरी सहायता सिर्फ उसी के पास से आती है। David would always say, दाऊद हर समय एक ही बात को कहता है, oh, rest my soul in God alone. और वो कहता है, हे मेरे प्राण परमेश्वर में तू हर समय विश्राम कर। Have rest my soul in God alone. परमेश्वर सिर्फ प्रभु में तू अकेले विश्राम को पा। Dear friends, प्रिय मित्रों, let us be diligent in prayer. आइए हम प्रार्थना में ईमानदार हों। The Lord will delight in us. प्रभु हम में बड़ा प्रसन्नचित होगा। Let us not blame any other people. किसी और भी व्यक्ति को हम दोषी ना ठहराएं। Let us not blame Satan. शैतान को भी हम दोषी ना ठहराएं। Let us submit ourselves to God अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें and resist the devil. और शैतान का सामना करें, He will flee from us. वो हमारे सामने से भागेगा। Evangeline, will you pray? क्या बहन इवेंजेलिन आप प्रार्थना करेंगे? Lord, right now enter into every family, Lord. हे प्रभु, इस वक्त आप हर परिवार में प्रवेश कीजिएगा। Lord, as they have given their whole family into your hands. हे प्रभु, इन्होंने अपना पूरा परिवार आपके हाथों में सौंप दिया है। Lord, use them as mighty weapon of God, Master.
हे प्रभु, आप इन्हें सामर्थी औजार के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। as sharpened weapons, Lord. हे प्रभु, एक नुकीले औजार के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। Lord, it is possible only through the Spirit of God, Master. और ये सिर्फ प्रभु की आत्मा के द्वारा संभव है। Fill the entire family with your Spirit right now. और इसी वक्त पूरे परिवार को आप अपनी आत्मा से भर दीजिएगा। You are not a respecter of any person, Lord. और आप किसी मनुष्य का भेदभाव नहीं रखते। Lord, as they are crying for your anointing, हे प्रभु, अभी जब वो आपके अभिषेक के लिए रो रहे हैं, fill the entire family with your Spirit, Master. हे प्रभु, पूरे परिवार को आप अपनी आत्मा से भर दीजिएगा। Pour out your Spirit. हे प्रभु, आप अपनी आत्मा को उड़ेलिएगा। Pour out your blessing. हे प्रभु, आप अपनी आशीष को उड़ेलिएगा। Lord, let them say, I can do all things through Christ who is strengthening me. और वो कहे, मैं प्रभु के सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। Fill them as a family, Lord. और परिवार के रूप में आप उनको भर दीजिएगा। Use them as a family, Master. और परिवार के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। Let them rise up for you, Master. और आपकी नाम की महिमा के लिए वो उठ खड़े हो। Let the resurrection power come upon them right now. और इसी वक्त आपकी जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, इनके ऊपर उतरे प्रभु। Let the glory of God come and fill them, Master. और प्रभु की महिमा इसी वक्त आकर इनको भर दे प्रभु। Surround them with your power. और आप अपनी सामर्थ के द्वारा घेर लीजिएगा। Let them be used as flaming fires right now. और ये एक अग्निमय रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। Thank you for filling them, Lord Jesus. हे प्रभु, इनको भरने के लिए धन्यवाद प्रभु। Take away every divisions in the family, Lord. और परिवार में जो कुछ विभाजन है उसी वक्त बाहर निकालिए। Let them live a holy life unto you, Lord. हे प्रभु, वो आपके लिए एक पवित्र जीवन बिताए। Take away every misunderstandings in the family. और परिवार में जो अनबन मतभेद है, सब कुछ बाहर निकालिए। Let them be as one spirit together, built by the Holy Spirit, Lord. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इनका परिवार एक बन जाए। Lord, continue to bless them and increase in them, Master. हे प्रभु, आप लगातार इनको आशीषित कीजिएगा और लगातार इनको इस्तेमाल कीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।